السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کلاس 7 کے تیسرے لیسن کا ہم تیسرا لیکچر لیں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو 2 کلاسوں میں یہاں تک پڑھایا، پیج نمبر 14 پہ ہم نے جو لاسٹ ورڈ سیکنڈ پیراگراف پڑھا، دا میجر کمپوننٹ however is nicotine which has harmful effects on the nervous system in humans. It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. یہاں پہ اس نے فل سٹاپ ڈالا ہے، اس کے بعد لکھا ہے یوزز آف ٹوبیکو۔ یہاں پہ آپ کاما کیجئے اس کو، اور یوزز آف ٹوبیکو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ٹاپک چھوٹ رہا ہے، شاید یہ ٹائپنگ ایرر ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بلڈ پریشر کے بعد یہاں پہ کینسر اینڈ ادر ڈیزیزز، دیٹ مینز دس نکوٹین کازز ہارٹ ریٹ اینڈ ہائی بلڈ پریشر، کینسر اینڈ ادر ڈیزیزز، کینسر اور باقی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اٹ از سائلنٹ کلر، lung cancer is caused by the tar in tobacco smoke. People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increases heart rate and blood pressure, which strains the heart and blood vessels. This can cause a heart attack and stroke. It slows the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands. Some smokers end up having their limbs amputated. Carbon monoxide decreases the oxygen supply to the muscles and brain, making these organs stressed. اس سے ہم پہلے اس کی ورڈ میننگ دیکھتے ہیں، ڈفیکلٹ ورڈس۔ ٹار ہوا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کالا گاڑا سیال مادہ، یعنی جو بلیک کلر کا ہو، موٹا ہو لیکن ہو لکوڈ، ایسی چیز کو ہم ٹار کہتے ہیں۔ سٹروک ہوا صدمہ، ایمپوٹیٹڈ ہوا جسم کے کسی لمب کا، ہاتھ کا، پاؤں کا یا انگلی کا یا ٹانگ کا یا کسی اور آرگن کا کاٹنا، اس کو بولتے ہیں ایمپوٹیٹڈ، یعنی جسم کا کوئی عضو کاٹنا۔ سٹریس ہوا دباؤ ڈالنا، سٹرین بھی کہتے ہیں ہم کشمکش کو یا دباؤ کو، ہم پڑھیں گے۔ تو کینسر اینڈ ادر ڈیزیز، یعنی یہ جو نکوٹین ہے، اٹ کازز ہارٹ ریٹ، ہائی بلڈ پریشر یعنی انکریزڈ ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ کینسر اور باقی ڈیزیزز یعنی کینسر اور باقی مہلک بیماریاں اس نکوٹین سے ہوتا ہے۔ اٹ از اے سائلنٹ کلر، دس ٹوبیکو از اے سائلنٹ کلر، یعنی یہ ایک میٹھا زہر ہے، آہستہ آہستہ یہ استعمال کرنے والے کو موت کے منہ میں دھکیلتا ہے، موت کا سامنا کرواتا ہے اسے۔ لنگ کینسر از کازڈ بائی دا ٹار ان ٹوبیکو سموک، جو ٹوبیکو کا سموک ہوتا ہے یعنی تمباکو کا جو دھواں ہوتا ہے، اس میں یہ ٹار پایا جاتا ہے اور اسی سے لنگ کینسر ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ تمباکو کو چاہے سگریٹ کے طریقے سے استعمال کرے، حکے کے طریقے سے، سگار کے ذریعے سے استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے جو لوگ تمباکو کا دھواں استعمال کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اس تمباکو کے دھوئیں میں ٹار ہوتا ہے جو سیال یعنی لکوڈ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اور گاڑا مادہ ایک ہوتا ہے یعنی بلیک کلر کا ایک لکوڈ اور موٹا لکوڈ ہوتا ہے، یہ یعنی زبردست نقصان دہ ہوتا ہے، اسی سے لنگ کینسر ہوتا ہے۔ یہ دھوئیں کے ساتھ چلا جاتا ہے ہمارے لنگس میں، استعمال کرنے والے کے لنگس میں، تو اس سے کینسر ہوتا ہے۔ People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. یہ ماہرین کا ماننا ہے، جو ہمارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہمارے ماہرین ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یعنی ڈاکٹروں کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ
सिगरेट या हुक्का या सिगार का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो किसी भी तरीके से तंबाकू का धुआं इस्तेमाल करते हैं, उनमें उन लोगों से जो सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग कैंसर से मरने का, यानी उनमें लंग कैंसर होता है और उस लंग कैंसर की वजह से उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। और ये कितना है, 10 गुना ज़्यादा, यानी 10 टाइम्स इन लोगों में लंग कैंसर से मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन लोगों से जो स्मोकिंग नहीं करते हों। The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increases heart rate and blood pressure, which strains the heart and blood vessels. कहते हैं जब स्मोकर स्मोकिंग करता है, यानी जब स्मोकर सिगरेट पीता है या हुक्का पीता है या सिगार पीता है, तो उस वक्त जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो निकोटीन वो मतलब मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ये दोनों उसी वक्त उस पीने वाले का, यानी सिगरेट पीने वाले का, सिगरेट इस्तेमाल करने वाले का, उसकी हार्ट रेट बढ़ाता है, यानी दिल की धड़कन को तेज़ करता है और ब्लड प्रेशर को भी तेज़ करता है, ऊंचा करता है, ब्लड प्रेशर को रेज करता है, हाई करता है। उससे फ़िलहाल दस्ती उस सिगरेट पीने वाले पर, उसके दिल पर और खून के रगों पर दबाव आता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर दिल की धड़कन तेज़ होती है तो दिल पे दबाव पड़ता है, और दिल की धड़कन अगर तेज़ होगी रगों पे भी दबाव पड़ता है। इसी तरह अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दिल पे भी दबाव पड़ता है और रगों पे भी दबाव पड़ता है। दिस कैन काज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, और इस वजह से उन लोगों में ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं और स्ट्रोक होने का चांसेस होता है जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं उनमें फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जल्दी आता है। इट स्लोज द ब्लड फ्लो, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। दिस निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन मिक्सेस विथ आवर ब्लड, ये निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब खून के साथ मिलता है तो ये ब्लड फ्लो को कम करता है, यानी दोनों चीज़ें मिल के हमारे जिस्म में खून के दौरे को कम करते हैं, यानी खून के दौरे को कम करते हैं। और दूसरा जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जिसका काम यही होता है वो जिस्म के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाए, उसके साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड चिपकता है तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में अच्छी तरह से नहीं पहुंचता है, तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई खासकर हाथों और पाँव में कम पड़ती है, यानी हाथ और पाँव जो होते हैं स्मोकर के, उसके हाथों और पाँव को, पैरों को ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, कम होती है, तो उसके हाथ और पाँव कमज़ोर पड़ते हैं, सुन्न पड़ते हैं, उनमें कमज़ोरी आती है। और इस वजह से क्या होता है, सम स्मोकर्स एंड अप का हुआ मरना, सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्ब्स एम्पुटेटेड, यानी कुछ लोगों की मौत कैसे होती है, उनको जिस्म के हिस्से काटने पड़ते हैं। यानी कोई स्मोकर जो ज़बरदस्त स्मोकिंग करता हो, ज़्यादा चैन स्मोकर होता है, और उसमें कोई स्टेज ऐसा भी आता है, किसी स्मोकर के ज़िंदगी में कोई स्टेज ऐसा भी आता है, उसके हाथ या उसके पाँव या हाथ या पाँव कोई भी हिस्सा जिस्म का वो सुन्न पड़ता है, यानी उसमें फिर न हरकत होती है, यानी कमज़ोरी पड़ती है। फिर उसको डॉक्टर उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसका वो हिस्सा काटते हैं, यानी हाथ काटना पड़ता है, उंगली काटनी पड़ती है, पाँव काटना पड़ता है, टांग काटनी पड़ती है, पूरा बाजू काटना पड़ता है। इस तरह उनकी फिर मौत भी वाक़ा हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड ब्रेन, जो हमने पहले ही पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी दिखाया था। जो हीमोग्लोबिन होता है,
ग्लोबिन होता है, इसको बाइंड करना होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी इसको मिलना होता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जो स्मोकर होता है, जो सिगरेट पीने वाला होता है, हुक्का पीने वाला होता है, उसके सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जहरीली गैस नहीं है, ये हमारे जिस्म से बाहर आती है, इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ता हमारे जिस्म पे। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसकी एफिनिटी होती है, अगर यहाँ से ऑक्सीजन आए और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आए तो हीमोग्लोबिन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। तो वहाँ से लंग्स से हीमोग्लोबिन आया था, ऑक्सीजन को यानी हार्ट से लंग्स में पहुँचा हमारा खून जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को लेना होता है ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ पे था मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता है और हमारे जिस्म के हर हिस्से में पहुँचाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। अक्सर कहीं पे हम कुएं को सफाई करते करते क्या करते हैं, वहाँ पे मोटर बिठाते हैं, चाहे कुएं में उतारते हैं मोटर, या कुएं के ऊपर ढक्कन के पास या गले के पास मोटर जलाते हैं, मोटर ऑन करते हैं पानी निकालने के लिए, क्योंकि सफाई करनी है। फिर क्या होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड कुएं में फैल जाती है, और जो ही कुएं से पानी बाहर निकालते हैं तो उसमें सफाई करने वाले नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरते उतरते ही उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उस कुएं में यही कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होती है, और जो ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर लेते ही लेते वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। और अगर कोई अनजान इंसान जिसको ये पता नहीं होता है कि वहाँ इनकी मौत कैसे हुई, जब वो उनको बचाने के लिए उतरता है कुएं में, तो उसकी मौत भी इसी वजह से होती है। बहुत सारे हादसा ऐसे होते हैं, और वजह होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस स्मोकर के फेफड़े में, लंग्स में चला जाता है, वहाँ से खून में, तो खून को लेना था ऑक्सीजन, उसने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे जिस्म में जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हमारे जिस्म में। तो हमारे जो मसल्स है, जो ब्रेन है, यानी जो मसल्स है, हमारे सेल्स, मसल सेल्स हमारे जिस्म को हरकत देते हैं, हमारे जोड़ों को हिलाते हैं, हमारे जिस्म के हिस्सों को हिलाते हैं, वो मसल सेल्स होते हैं। और जो ब्रेन, पूरा हमारा कंट्रोल ब्रेन ही करता है। तो इनमें जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, जाहिर सी बात है ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, न हमारे ब्रेन सेल्स सही से काम कर पाते हैं और न ही हमारे मसल सेल्स सही से काम कर पाते हैं। तो नतीजा जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, दीज ऑर्गन्स गेट स्ट्रेस्ड। इससे हमारे मसल्स पे, हमारे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है, ज़बरदस्त दबाव बढ़ता है, और कभी कभी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, अल्लाह ताला बचाए। तो यह है मुहलिक असरात इस टबैको के। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में, अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।